students, we will discuss what is the role of an operating system while functioning of a computer. So let us begin with the topic. An executable program runs on computer with the help of operating system. The operating system has a major role to play the execution of the program in executable form. So as you know, the operating system is basically a user interface, or you can say it acts as an interface between the user and the machine. So without operating system, a user cannot instruct a computer, or we cannot give any instruction to the computer to perform any task. So the operating system is the basic software which requires to be present in every computer before performing any operation or task on that computer. So the operating system is very important software. In earlier days, computer based to run one program at a time, but modern computers are capable of running multiple programs, that means multi-programming, catering to the programs of multiple user, that is multi-user. इससे पहले जब होता था, पहले जो कंप्यूटर बने थे तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको हम कहते थे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक बार में केवल एक प्रोग्राम को एड्रेस करते थे या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे. लेकिन आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स. दैट मीन्स यू कैन एग्जीक्यूट और रन two or more programs simultaneously in computer's memory, right? And this process of running more than one program at a same time in a computer is called multi-programming. And this happens because of multi-user concept. Multi-user means a machine can support more than one user at a time. Earlier, when we are having only single user operating system, that single user operating system only supports single user at a time. So because of single user, they were capable to handle only single program at a time. But nowadays the computers are advanced computer, and the softwares are also advanced software. So the operating systems which are multi-user allows us to execute more than one program at a time. Hence the role of operating system in executing a program is more complex and important today. तो इसलिए आज के समय में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं किसी कंप्यूटर पे, तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर. कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह से काम करता है? सबसे पहला टर्म है इसमें प्रोसेस. प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? प्रोसेस एक टास्क है, राइट? ये जॉब है जो कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होना होता है. The moment a program is loaded into memory for running and executing, it is called a process or job. देखिए, किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो एग्जीक्यूट तभी होता है प्रोग्राम जब वो मेमोरी के अंदर लोड होता है. जैसे आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट लीजिए, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम, तो कोई भी एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं मोबाइल के अंदर, तो वो एप्लीकेशन आपका जो ओपन होता है मेमोरी में, वो रैम के अंदर ओपन होता है, राइट? वो कहीं स्टोर रहता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में, और वहां से वो प्राइमरी मेमोरी जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें लोड होता है, और उसके बाद फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है. तो ये जो प्रोग्राम जैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोसेस. हमारा एक प्रोसेस या जॉब जो है या टास्क जो है वो इनिशिएट हो गया. थ्रोपुट,
थॉरोपुट इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। थॉरोपुट बेसिकली क्या है, ये एक यूनिट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कंप्यूटर की एफिशिएंसी, कंप्यूटर कितना एफिशिएंट है। विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ जॉब कैरिड आउट इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्यूटर कितने जॉब्स या कितने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, थॉरोपुट। Again, I am reminding you this throughput is a very important term, and more often it is asked in your examination. So, from exam point of view, this throughput term is very important. This is very important definition. Now, what are the functions of an operating system? An operating system provides following functions: process management, process scheduling, memory management, and input output management. So let us discuss them one by one. What is process management? The operating system must allocate resources to processes, enable processes to share and exchange information, protect the resources of each process from other processes, and enable synchronization among processes. अब मैंने आपको बताया था प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है जब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस और अ जॉब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना। रिसोर्सेज मीन्स उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो उसका जो लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या रिसोर्सेज की उनको जरूरत पड़ेगी, उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और प्रोसेसेस को शेयर और आपस में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, एक्सचेंज करना है, तो वो काम भी आपका प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग बेसिकली क्या होता है, एक जैसे हम शेड्यूल करते हैं, भाई ये काम आप शेड्यूल कर दो। शेड्यूल मीन्स उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से आपने एक वर्क प्लान आपने डिसाइड करना है। तो उसी तरह से अब जो प्रोसेस है मेमोरी के अंदर लोड हुआ है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किस तरह से आप उस प्रोसेस की कंप्लीशन का जो पैटर्न है वो तैयार करोगे, दैट इज कॉल्ड योर शेड्यूलिंग। Allocation of CPU time to various processes in memory is called process scheduling. देखिए कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे पास जो यूनिट है कंप्यूटर के अंदर वो क्या है, वो है प्रोसेसर जो आपका होता है और जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक बहुत बिजी यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर का, और वो जो सीपीयू होता है वो उसके अंदर कई सारे प्रोसेसर, क्योंकि आपको जैसे अभी पीछे बताया कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, एक साथ कई सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो सीपीयू हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए अपना टाइम डिवोट करता है। तो वो टाइम अलग अलग वेरियस प्रोसेसेस के लिए किस तरह से शेड्यूल होगा, ये आपका काम होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग का। तो एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम टू वेरियस प्रोसेसेस, जो सीपीयू का टाइम है वो अलग अलग प्रोसेसेस को कैसे देना है, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग। CPU scheduling is a process which allows one process to use the CPU while the execution of another process is on the hold. अब जैसे आपको बताया कि एक साथ कई सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो अगर सपोज एक प्रोसेस अभी हो रहा है और दूसरा प्रोसेस जो होना है उसको होल्ड पे रखना, फिर जब वो सीपीयू से पहला वाला प्रोसेस खत्म हो जाए तो फिर आप दूसरे प्रोसेस को क्यू में रख के उसको वेट स्टेट में रख के, एंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक इनपुट आउटपुट एक्सेट्रा। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रिंटर पे कुछ चीज प्रिंट निकालना है, लेकिन प्रिंटर पे ऑलरेडी एक दूसरी कमांड आपने दी हुई जो प्रिंट हो रहा है, तो इमीडिएटली वो डायरेक्ट जब तक वो पहला वाला टास्क या प्रोसेस आपका फिनिश नहीं हो जाता तब तक
दूसरा प्रोसेस आपका इनिशिएट नहीं होगा। यानी ये प्रोग्राम जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं ये तभी प्रिंट होगा जब पहला वाला फिनिश हो जाएगा। तो उस दौरान उसको वेट स्टेट में रखता है। वेट स्टेट में रखना ये भी आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम है। द एम ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट, फास्ट एंड फेयर। और अगर ये शेड्यूलिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, आपका सिस्टम फास्ट काम करता है। देन नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। एज यू ऑल नो द मेमोरी प्ले अ वाइटल रोल इन execution of any program. So allocating memory to various processes and resources is called memory management. जैसे आपको पहले ही बताया है कि कोई भी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसको जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें लेके आना होता है, और जब प्राइमरी मेमोरी में आता है तब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट करना है, यानी जो भी टास्क आपने प्रोसेस करना है, जो भी प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करना है, इसको सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करनी होती है। और उसके बाद उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, माना आपको प्रिंट करना है तो आपको प्रिंटर की जरूरत है, राइट। वो उसमें कुछ इनपुट देना है तो आपके पास कोई इनपुट यूनिट या डिवाइसेस से आपको कुछ डाटा उसको प्रोवाइड करना होगा। सो दिस ऑल इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज the functionality of an operating system which handles or manages primary memory and moves processes back and forth between memory and disk during execution. कई बार क्या होता है, प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद उसके कुछ रिजल्ट निकले और उन रिजल्ट्स को वापस आपको मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये काम किसका होता है, ये फंक्शनैलिटी आपकी मेमोरी मैनेजमेंट की होती है कि वो कौन सा डाटा कब मेमोरी में डालना है, कब मेमोरी से वापस एग्जीक्यूशन के लिए लाना है, और कब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करना है। तो ये सब आपका मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ इधर इट इज एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज फ्री। अब आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, आज की डेट में तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो टेराबाइट में होती है। तो उस टेराबाइट के अंदर हर एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। उसके किस मेमोरी लोकेशन से क्या इंफॉर्मेशन आपने एक्सेस की, कहां क्या स्टोर किया है, वो सारा डिटेल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहता है। और ये सब काम वो कैसे करता है, मेमोरी मैनेजमेंट के through. The next is called virtual memory management. Now, as you all know, about RAM, random access memory. It is the memory, primary memory of your computer, and every program, when we are executing any program, it must be loaded in primary memory, that is RAM first. But what happens, sometimes your RAM is there is a limited space in your RAM. Suppose your RAM is full and still you want to open some program, so it takes some area of your hard disk, right, and to open that program, and this area of hard disk is called virtual memory. तो virtual memory basically क्या है, जब हम हमारी RAM जो है, जो ओरिजिनल रैम है वो फुल हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क से कुछ पर्टिकुलर मेमोरी को या उसके कुछ स्पेस को हम रैम की तरह से यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। So that means using some area of hard disk as RAM when RAM is full is known as virtual memory. Like RAM, virtual memory is also volatile. और जैसे नॉर्मली आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो कंटेंट होता है वो आपका नॉन वोलेटाइल होता है, यानी परमानेंट फॉर्म में होता है, राइट। अगर कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो जाता है तो हार्ड डिस्क पे जो भी कंटेंट है वो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता। रैम में क्या होता है कि अगर आप कि सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है, कि पावर ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम में होती है वो सारी वॉश आउट हो जाती है, उसको आप दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सकते। इसीलिए जो रैम है वो क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं।
तो रैम की तरह से ही जो वर्चुअल मेमोरी होती है दैट इज ऑल्सो volatile, यानी whatever information is there in virtual memory, once your computer is switched off, that memory will automatically be the content will automatically be removed from virtual memory. One more thing, the virtual memory is very slow as compared to RAM. जो actual RAM होती है, original RAM, वो बहुत fast respond करती है, जबकि virtual memory because it is part of hard disk, so hard disk memory, so it is slow in nature. Then we have input output management. This is the fourth function of your computer's operating system, input output manager. The role of input output manager of an operating system is to connect the process of actual input output devices through some strategies. जो इनपुट आउटपुट मेमोरीज बेसिकली इसका होता है कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको किसी प्रोसेस से कैसे कनेक्ट करना है। यानी अगर आप किसी प्रोग्राम, आपने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया जिसको आप एग्जीक्यूट करना है, तो उस प्रोग्राम के अंदर सपोज आपको कुछ इनपुट प्रोवाइड करना है, तो आपका जो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है या माउस है उसको आपको उस प्रोग्राम के साथ लिंक करना होगा, कनेक्ट करना होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई प्रोग्राम के थ्रू कुछ रिजल्ट्स आपने बनाया और उसको प्रिंट करना है, तो आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको कनेक्ट करना होगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये इनपुट आउटपुट मैनेजर जो फीचर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो काम करता है। It sends the input output request to the physical device. Upon receiving response from the device, it passes devices received in response to the process. During the time of process with input output manager, the CPU keeps on working with other ready process. तो जब तक आपका input output किस कोई process input output manager के साथ इंगेज रहता है, तब तक CPU जो दूसरे आपके प्रोसेसेस हैं, जो रेडी प्रोसेसेस हैं, उनको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर इंटरफेस। एज यू नो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? इट इज अ यूजर इंटरफेस दैट एक्ट्स बिटवीन यूजर एंड मशीन, as an interface between user and machine. So an operating system provides an environment for the user to interact with machine through a user interface. अब हम क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा सके या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, वो दो तरीके के होते हैं। पहला कहलाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा कहलाता है टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसे विंडोज में जब हम काम करते हैं तो हमको सारी चीजें ग्राफिक्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं। आप देखते हैं कि अगर आपको सपोज कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आपको उसके आइकन डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। आप उन आइकन्स को आइडेंटिफाई करते हो और माउस पॉइंटर से वहां क्लिक करके उसको एग्जीक्यूट कर लेते हो। लेकिन ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें ये ग्राफिक्स का फीचर नहीं होता। आज की डेट में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी कम है, बट पहले जब इनिशियली कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस समय आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते थे। अब कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं जहां पे आपको हर कमांड को लर्न करना होता है और उसको टाइप करके और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यानी उसमें कोई ग्राफिकल आइकन्स एटसेट्रा नहीं होते। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आप उसको हम GUI या WIMP कहते हैं। WIMP क्या हो गया? विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स, इसे विम्प इंटरफेसेस भी हम इसको कहते हैं। और कमांड लाइन इंटरफेस क्या होते हैं? कमांड लाइन रिक्वायर्स अ यूजर टू टाइप इन कमांड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अलाउएबल commands to perform a desired action. And these are some of the topics that are in your syllabus, but only for this year due to pandemic situation the CBSE has specially
deducted or deleted these topics from your syllabus. So you are not required to go through these topics, but these are very interesting topics as this is about cloud computing. So from your book you can go through simply about these topics, and you will have some basic knowledge of cloud computing. So this is all about today's video. Hope you understand the concept of or role of operating system in a computer. Thank you very much.